हेलो एवरीवन, नमस्कार। सो आई एम श्योर यू आर ऑल अवेयर कि भाई दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहे हैं एंड प्रोटेस्ट आर गोइंग टू सच एन एक्सटेंट नाउ कि भाई अब दिल्ली के कुछ मेट्रो स्टेशंस हैव बीन ब्लॉक्ड, सम एरियाज आर लाइक ब्लॉक्ड बिकॉज प्रोटेस्टर्स आर हियर इन ह्यूज नंबर्स एंड अब ऑपोजिशन के लीडर्स भी आ रहे हैं यहाँ पे क्योंकि मतलब दिस इज बिकमिंग समथिंग मच बिगर. So I figured there is something that we need to talk about over here. So first and foremost, I wanted to talk about कि भाई why the protest and why now. क्योंकि अब बोलने के लिए this is a protest for the NEET exam. Now, but NEET was not the first exam that got leaked. There were so many exams before NEET जो कि लीक होते जा रहे हैं and like आज से नहीं पिछले 10, 15, 20 साल से आप कितना ही ले लो. This is not because of this government, that government, but exam leak in India is a chronic problem. So much so that I'll show you कि भाई SSC, NEET, CUET paper leaks, cancellations, glitches that affected students in 2025. This is a report from right now. I think this is like 3 weeks ago, 4 weeks ago कि भाई महाराष्ट्र में TET का पेपर लीक हो गया है. Then तमिलनाडु, उत्तराखंड, राजस्थान, मतलब these are states where it is very frequent कि भाई मतलब बोला जाता है पेपर होगा बट फिर पेपर नहीं हो रहा है. तो this is not a new problem. This has been a problem with the education or the sort of recruitment system in India for a long time. But NEET obviously was the biggest of the lot. Why? Because NEET is that entrance exam that almost everybody gives right out of class 12. And जब यहाँ पे इस level का मतलब बकवास होती है, तो therefore the frustration and the anger is natural to boil over. On top of that, obviously there were other factors कि भाई जो movement बना है इधर उसमें सोनम वांगचुक जी का बहुत ही बड़ा हाथ रहा है बिकॉज ही वाज सिटिंग ऑन हंगर स्ट्राइक फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एंड he is still in critical condition in Safdarjung hospital. There are still some students who are there on the protest site who are still sitting on hunger strike. अब उनको मतलब दिखा नहीं रहे हैं मीडिया में क्या है कैसा है, ये एक अलग चल रहा है. Like luckily unluckily for us we have social media, we get these news मतलब here there everywhere. अभी ये भी ब्लॉक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. बट द आइडिया इज कि नीट का पेपर वॉज दैट क्रिटिकल पॉइंट जहां पे यार अब यहां पे मतलब कोई भी पेपर अगर आप लीक कर सकते हो तो फिर क्या पॉइंट रह गया. वाई एम आई इवन ट्राइंग, दैट बिकम्स द क्वेश्चन एंड व्हेन दैट बिकम्स द क्वेश्चन इट इज अ प्रॉब्लम. क्योंकि देखो, why is fairness critical in exams in India? Fairness is critical because India is a country where there are not a lot of opportunities. There is intense competition for the limited resources that we have, and education is seen as that chance कि भाई अगर मैं कुछ करता हूं, मैं मेहनत करता हूं, मैं मेहनत करती हूं, तो I can make a difference in my life, in my family's life, in the well-being of the people around me, that people that I care about. एंड व्हेन दैट इज अटैक्ड, तो ना हमारे अंदर एक एवोल्यूशनरी वो है ट्रेट कि भाई छोटी सी चीज है ये कि भाई मतलब मैं बस चाहता हूं कि अगर मैं मेहनत करूं तो मुझे उस मेहनत का कुछ आउटकम मिले. बट जब इस चीज पे आप अटैक करते हो ना, एंड दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन लाइक पेपर्स आर लीक्ड, क्योंकि मेरी मेहनत का कोई मतलब नहीं रह गया. फिर आप मेहनत कर लो जो भी करनी है, किसी और ने आके पैसे दे देने हैं और वो पेपर लीक हो जाएगा और भाई आप बस बेवकूफों की तरह सर मार रहे थे. So it leads to a lot of anger and frustration, and that is what is coming out over here. क्योंकि इंडिया में या तो भाई ऐसा हो कि भाई मतलब कहीं पत्थर मार दो नौकरी मिल जाती है, कुछ हो जाता है, नहीं होता है. अगर वो होता तो मे बी वी वुड नॉट हैव सीन दीज प्रोटेस्ट. बट इन अ केस वेयर लाइक दीज एंट्रेंस एग्जाम्स, दीज गवर्नमेंट एग्जाम्स, नीट, जेई, ये सारे एग्जाम्स जो हैं, these are seen as a critical gateway to a better life. And there are a lot of people in India who are fighting for a better life, and exams are a means to that. Therefore, fairness in exams is critical क्योंकि it gives us that hope, it gives us that belief in the idea of India कि ये जो इंडिया में मैं बिलीव कर रहा हूं ना, I can do well in this India. Because if I cannot do well in an India, मैं कुछ भी कर लूं तो फिर मैं क्या मतलब है मुझे इस इंडिया का. पेट्रियोटिज्म, जो नेशनलिज्म, ये सारी इमोशंस आते हैं, इट इज बिकॉज आई बिलीव इन दैट आइडिया ऑफ इंडिया कि ये मेरा भारत है, एंड दैट्स द आइडिया. बट एज यू नो आई ऑल्सो ranted a bit, but because I feel strongly about this topic क्योंकि यार मतलब क्या चल रहा था ये. एंड अब इसके ऊपर अब व्हेन द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्डिंग इन द वे दैट इट रिस्पॉन्डेड कि भाई इग्नोर कर दो पहले एंड फिर एकदम से मतलब पुलिस एक्शन करवा दो, दैट इज अ प्रॉब्लम बिकॉज दैट शुड नॉट हैव बीन द रिस्पॉन्स ऑफ द गवर्नमेंट. द गवर्नमेंट शुड हैव टॉक टू दीज स्टूडेंट्स, दे शुड हैव टॉक टू दीज पीपल कि भैया इशू क्या है, हम रिजॉल्व करते हैं. अब पैनिक मोड में सब चीजें रिजॉल्व हो रही हैं जब पहले अच्छे से हो जाती. बट अगेन
दैट इज द प्रॉब्लम. अब पीसफुल प्रोटेस्ट की बात करते हैं थोड़ी. नाउ पीसफुल प्रोटेस्ट कायदे से अगर देखा जाए तो आर्टिकल 19 जो हमारा है, इट गिव्स यू सम 6 बेसिक फ्रीडम्स, राइट? All citizens have the right to assemble peaceably and without arms. This is a fundamental right that you have. Now, this does not mean कि भाई आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि like look at 19B. Nothing in subclause B of the said clause shall affect the operation of any existing law insofar as it imposes or prevents the state from making any law, sovereignty and integrity of India, public order, reasonable restrictions, right? कि अब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इस पे भी हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि जस्ट बिकॉज 19B में बोल दिया कि भाई आई कैन असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, देयर कैन बी रिस्ट्रिक्शंस कि भाई आपने ट्रैफिक ब्लॉक कर दिया है या देयर आर थिंग्स. सो फॉर दिस रीजन ऑब्वियसली जब जो अपना प्रोटेस्ट पे मार्च होनी थी कि भाई संसद मार्च चलो, तो मार्च पे परमिशन नहीं दी गई थी. स्टिल पीपल लाइक वेंट. नाउ दिस क्रिएट्स प्रॉब्लम्स. व्हाट प्रॉब्लम्स डज दिस क्रिएट कि भाई दिस गिव्स एन एक्सक्यूज एंड अ इजी वे आउट फॉर द गवर्नमेंट कि भाई मतलब ये लोग हुड़दंगबाजी कर रहे थे, ये भाई मतलब गाड़ियां तोड़ दी हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, सो देयरफॉर द स्टेट कैन यूज violence to suppress a certain amount of violence. But even in that, there are some clear guidelines that have been established through legal precedents, through court rulings कि भैया disproportionate force नहीं हो सकती है यहाँ पे, राइट? आप वाटर गन यूज कर रहे हो, हाँ जी ठीक है, लाठी चार्ज होता है, ऐसा नहीं है नहीं होता है, बट डिस्प्रपोर्शनेट फोर्स का मतलब क्या है कि भाई यहां पे पैटर्न ऑफ इंजरीज को देखा जाएगा कि इफ द पीपल हु आर बीइंग एडमिटेड टू हॉस्पिटल, वहां पे वाइटल पॉइंट्स पे ज्यादा इंजरीज हैं कि भाई सर पे लोगों को ज्यादा लगी हुई है, या भाई मतलब रीढ़ की हड्डी पे लाइक स्पाइन पे ज्यादा इंजरीज हैं, सो दिस कैन बी सीन एज अ डिस्प्रपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स एंड दिस इज एस्टैब्लिश्ड लॉ. ऑन टॉप ऑफ दैट, if you use force on bystanders, people who are not participating, who are just standing over there, or people who are peacefully marching, that is not something that is legally allowed in India. But अभी होता क्या है ना कि in that moment वो like पुलिस भी अपना फोर्स के उसमें रहती है कि भैया मारो डंडा, एंड देन पीपल आर ऑल्सो देयर, वहां पे भी मॉब मेंटालिटी आ जाती है. इट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स. It creates genuine problems, and that is what I also wanted to caution, that we know that a lot of our students, also people who watch this channel, are at the protest, and I'm sure a lot of others are also over there. The idea is simple. Peaceful protest जब तक ये रहेगा तब तक there is force in the arguments. जब तक आप आराम से अपनी बात रखोगे तब तक बात सुनी भी जाएगी, बट जैसे ही ये violent होता है, it becomes very easy for the state to suppress violence. And डोंट डू दैट बिकॉज द कॉज इज जेन्युइन कि भाई पेपर लीक नहीं होना चाहिए था. मतलब ये जिस कैलस तरीके से उस चीज को देखा गया कि पेपर लीक हो गया, हाँ ठीक है भाई होता है, ऐसे नहीं होना चाहिए. एंड इस कॉज के बारे में गवर्नमेंट शुड होल्ड पीपल रिस्पॉन्सिबल. दे शुड फाइंड कि भैया मतलब किसकी गलती है एंड दे शुड बी पनिश्ड. बट अगर ये प्रोटेस्ट वायलेंट होता है, दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स. इट विल अलाउ कि भाई ये प्रोटेस्ट को क्लैम्प डाउन कर दिया जाएगा. देयरफॉर द कॉशन इज कि भाई जबरदस्ती मतलब वायलेंट ना करें, पीसफुल रखें, मतलब गो पार्टिसिपेट इन इट. दैट इज ऑब्वियसली समथिंग दैट यू कैन डू. एंड यहाँ पे इवन द गवर्नमेंट के लिए देयर शुड बी दैट आइडिया कि भाई ये जो चीजें लीगल हमने बात करी, नाउ दीज आर थिंग्स दैट अब वो हीट ऑफ द मोमेंट में गवर्नमेंट को भी याद नहीं आती है, बट दीज आर थिंग्स दैट यू शुड ऑल्सो रिमाइंड द गवर्नमेंट कि भाई लाइक वी डू हैव अ राइट टू प्रोटेस्ट, नॉट प्रोटेस्ट बट पीसफुली असेंबल, and we do have a right to express. We do have that freedom of speech. Now isme naturally if there is a lot of need for change, and the need for change has to start at the top now कि भैया bottom से इतना pressure आ रहा है, तो there has to be that change. And I think therefore I've been talking about a little bit of that caution, क्योंकि अगर वो caution से ये चीज हम करेंगे और like caution से आप proceed करोगे यहाँ पे, it is possible for change to happen. Well, this is not the first time that has happened in independent India, and this will not be the last time that it happens in independent India. And I do hope, like ये जो liberal democracy हमारी है, we do maintain this tradition where the young people of this country can come forward and voice their protest कि भाई ये चीज जो है सही नहीं हो रही है, because that is what a democracy means. And I do really hope that that change comes about. But for that, I would really hope कि भाई ये protest peaceful रहे. And for that, I would want कि भाई आप भी मतलब जिसे को जानते हो, अगर आप जा रहे हो तो please do maintain that peace. Now, on top of all this also, you know that Shashank sir जो हमारे हैं, he is a practicing Supreme Court advocate.
and he is also available in case of any legal assistance if you want, or there is some trouble that you're going through, kuch issue ho gaya hai with relation to the protest, you can reach out on shashank@upscprep.com and we will help as much as we can. That's all that I wanted to say in today's video. All the best.